Hello everyone. In this video, we'll discuss about the 50 must questions which you should solve before getting into the CAT 2022. And I hope you'll find at least 6 or 7 questions which belongs to the same logic or same concept we'll discuss here. So let's move ahead with the questions. So here we are having the first question. Here we are having two schemes. Both are offering CI. The rate is same, but one amount is invested for 7 years, another for 9 years. At the end of 9 years, both must produce the same amount. It means by the end of second year, for example, the first is started on 1/1/2020 for 9 years. Another started at 1/1/22 for 7 years. It means both ends up on the same day. So it means the amount of the first at 2022 must be same as the second one. So it means amount of first after 2 years must be equals to principal of the second one. So let's see, the first principal is 100x. So at the end of 2 years, it becomes 116.64x. And the second, let's see, it is 100y. So by 1st January 2022, this is the same 100y. This is the first. So these two should be equal. And here we'll get x upon y is 116.64 is 200. Or simply you can say 11664 upon 10,000. This is the ratio of two amounts, two principals, you can say, not the amounts. Let's look at the another question. CI on certain sum for third year is given, for fifth year is given, and you need to find out the CI of the first year or the second year. Okay, here the very important thing is in CI, okay, we need not to calculate the rate of interest. Just one thing is very good about CI, that every single thing is increased by same percent in same duration. Okay, like ऐसा नहीं कि हर साल 10% बढ़ना है तो आप पर ईयर भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 21%. ओके, सो नेक्स्ट 2 ईयर में भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी 21% ही आएगा. प्रिंसिपल माइट बी डिफरेंट एंड डेफिनेटली प्रिंसिपल डिफरेंट ही होगा. ओके, सो वी कैन सी कि जो 4410 है इसमें ये हो गया है 4862.025. Yes, we can see clearly that data is quite difficult here, but for this kind of situation, we are having calculator for us. So this is the principal and this is the amount. Okay, हाँ, ये CI है, but okay. तो CI भी हर साल सेम रेट से ही बढ़ेगा जिस रेट से प्रिंसिपल बढ़ेगा. ओके, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है. तो 2 ईयर में इंटरेस्ट यहां से यहां हो जाएगा. तो नेक्स्ट 2 ईयर की बात करेंगे तब भी ऐसा ही होगा. मींस 4862.025 से बढ़कर x हो जाएगा एट द सेम रेशो. ओके, सिमिलरली इफ यू वांट कि ये तो हमारा 7th ईयर का आ गया क्योंकि ये 3rd था, 5th था. 3rd का 5th से जो रिलेशन रहेगा सेम रिलेशन 5th का 7th से रहेगा.
अगर हमें फर्स्ट भी चाहिए तो वी कैन सी द सेम थिंग, लाइक 4410 नेक्स्ट 2 ईयर में हो जाता है 4862.025. तो इनिशियल x which was the principal, you can say, okay, so CI for the first year it was not principal, let's say B, and it becomes 4410 in 2 years. So this is the CI for the first year. You can apply this relation with anything. You can apply with CI, you can apply with principal, you can apply with amount. तो ये सभी जगह as it is लगता है, and बहुत ही frequently आप you can see the question like this in CAT examinations. Let's move on to question number 3. Here another question. Sum of money becomes this in 2 years and this much in 4 years. You need to find out the amount at the end of 6 years. So just similar to the last questions, you can see a sum of money like whatever is 14520, it becomes 15769.2. 2 साल में 14,520 के बढ़कर 15,769.2 हो गया है. ओके, सो जितना 2 साल में बढ़ा है, अगले 2 साल में भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा. देखो अगर ऐसा ही होता तो अमाउंट सेम होता. ठीक है, तो यहां से यहां तक फॉर एग्जांपल इफ यू कैन कैलकुलेट इट्स 1249.2. तो 1249.2 अगर शुरू के 2 साल में बढ़ा तो अगले 2 साल में भी इतना ही अमाउंट बढ़ता. दैट इज द SI. बट CI में क्या होगा, जितना परसेंट यहां ग्रो हुआ है अगले 2 साल में भी एग्जैक्टली सेम परसेंट ही ग्रोथ होगी, एंड वील गेट आंसर. नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स. ठीक है, छोटा सा सॉल्यूशन है. यस, CI का क्वेश्चन है. डेटा आप देख सकते हैं क्लियरली बहुत गंदा दे रखा है. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. कैट में कैलकुलेटर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस काइंड ऑफ डेटा, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेटा थोड़ा सा डिफिकल्टी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, इंस्टॉलमेंट्स 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमको देना है. वी आर गिवन विद प्रिंसिपल, वी आर गिवन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देना है. तो इस केस में हमें बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट वील ट्राई टू फाइंड आउट द अमाउंट. अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000 into 1.1 to the power 3. This will be the amount. Okay. Now अब हमें क्या करना है, देखो अगर ये क्वेश्चन SI के केस में होता तो आपको डायरेक्ट अमाउंट दिया होगा, और अगर CI के केस में होगा तो आपको प्रिंसिपल दे रखा होगा और रेट दे रखा होगा. ठीक है, तो इन केस ऑफ CI हमें क्या करना है, 3 इंस्टॉलमेंट 100x, 100x एंड 100x. ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हमें मानना है कि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. सो ये एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जब हम जिस डेट में हमें इंस्टॉलमेंट देनी थी, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, एंड दिस इज एट द एंड ऑफ 3 इयर्स. तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हमें अमाउंट भी रीपे करना था. इट मींस इसकी बैंक में जो लाइफ रहेगी वो 0 डेज रहेगी, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. इसकी 1 साल रहेगी 10% आएगा. इसकी 2 साल रहेगी तो इट विल बी 21%. ओके, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट. वेल, CI निकालने का फंडा आई होप सबको आता होगा, बट फिर भी अगर नहीं आता तो बता देता हूं मैं. CI कैसे निकालते हैं, रेट 10% है तो 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100. ये आ गया आपका 2 ईयर का CI 20 + 1 विच इज 21%. आप दूसरे किसी रेट पर भी इसी तरीके से CI कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ ये टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. This total becomes 100, 200, 300, 20, 31x, 331x, and this is equals to the final amount which we supposed to repay. Now here we need a little bit use of calculator, and that's all done here. ठीक है, ये SI का केस अगर ये होता if, लेकिन SI केस में ध्यान रखिए कभी भी SI प्रिंसिपल नहीं होगा, हमेशा आपको अमाउंट ही गिवन होगा, और अगर प्रिंसिपल गिवन होगा तो आपको उसको CI मानकर ही करना है. ठीक है, आपको SI नहीं मानना है. इंस्टॉलमेंट मींस CI, इट्स नॉट SI एट ऑल. ओके, बट समटाइम्स अगर हमें SI ही करना होता है तो उस केस में आपको प्रिंसिपल की बजाय डायरेक्ट अमाउंट की वैल्यू देते हैं. तब आप ये कर सकते हैं, ये 21 के x की बजाय SI 2 साल का 10 + 10
20x हो जाएगा. That's all. Let's move on to next one. Okay. A sum of rupees is lent in beginning of a year at certain rate of interest. After 8 months, sum of this is more lent, but the rate of twice that of farmer at the end of year. This is interest from the both the loans. What is the original rate of interest? Okay. तो यहाँ इस केस में हम देख सकते हैं कि हमें किसी भी टाइप से रेट के बारे में कोई बात नहीं, मतलब इंटरेस्ट SI है CI कुछ भी नहीं दिया गया है. तो ऐसे केस में हमें मानना पड़ता है कि जब भी अमाउंट आपका उधार लिया गया है तो उस केस में हम SI यूज करेंगे. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होता तो उस केस में हमेशा हम CI ही यूज करते हैं, या पॉपुलेशन होती तो हम CI यूज करते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी दिस 725 पूरे साल के लिए है फॉर 12 मंथ्स, रेट whatever is R, and this amount is after 8 months, so this is for 4 month. रेट डबल हो गया है. डबल हो गया मतलब यू कैन सी अगेन 362.5 into 4 months into 2R upon 100 है, and then you can equate this to 33.50. Now you can calculate the value of R. It's nothing, it's not difficult value at all. Simple calculation is there. SI is generally very simple kind of questions. अगर मिल जाते हैं तो कभी भी नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में. Okay, a man invested rupees this X% per annum for years and earn a simple interest of this. Find out the earnings he had invested this percent for 5 years. Okay. Okay, yes. So general solution is हम X% के रेट से दिया है तो we'll find the value of X first. Okay. उसके लिए हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे 5670 equals to 17500 into X into 7 upon 100. We'll find the value of X. For next equation में X की वैल्यू पुट कर सकते हैं. Okay. So, but हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं. We know this 5670 is interest for the 7 years. We need the interest for 5 years. So this becomes the interest for 1 year, and this becomes the interest for 5 years. It becomes 4050. But yes, ये X% के रेट पर है, हमें X plus 2% के रेट पर चाहिए था. तो फर्दर हम क्या करेंगे, इस 17,500 का 2% का रेट का इंटरेस्ट 5 years, which is clear, 1750 होगा. हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. आंसर इज 5800. Okay, just look at one more thing, one more time. ये 7 years का था, 1 years का निकालने के लिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 5 कर दिया तो 5 years का आ गया. बट दिस इज इंटरेस्ट ऑफ X%. वी नीड X plus 2%, तो हम फर्दर 2% का इंटरेस्ट निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ X plus 2% of interest. Let's move on to next question. If the difference between SI and CI for 2 years is 120, for 3 years is rupees this. ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, एंड इसकी कैलकुलेशन भी अगर हम ध्यान से ना करें तो कितनी भी लंबी हो सकती है. तो हमें जब भी 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, लेट्स सी D2 is 120, एंड 3 साल का डिफरेंस, इट्स नॉट द डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 3 years. Okay, it's a 364.8. Okay, what we supposed to do, हमें R निकालना है. तो R क्या हो जाएगा हमारे पास, D3 minus 3D2 upon D2 into 100. ये आ गया रेट का परसेंट डायरेक्ट. Okay, it becomes 364.8 minus 360 upon 120 into 100. It will become 4%, and it is done here. The rate is 4%. Now, if you want to see further that we need to find out the principal, we have the D2. So here a very important concept.
like we know that difference for D2 is always PR square upon 10,000. We know this, so you can put the value. You know the D2, which is 120. We know the rate R, which is 4% upon 10,000. So it becomes, I think, 75,000. Okay, so this is a very important kind of questions and very small questions if you solve in the proper manner. Let's solve the next one. Sum of money doubles itself in 7 years and becomes 8 times itself in n years when invested in SI and m years when invested in CI. तो हमें किसी भी सम ऑफ मनी के डबल्स होने का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में लेट्स सी प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट भी x है, इस x को अर्न करने में हमें ड्यूरेशन लगा है 7 इयर्स। ओके, हमें फाइनल अमाउंट 8 टाइम्स करना है, मतलब हमें इंटरेस्ट 7x चाहिए, तो ये कितने ड्यूरेशन में होगा, which is n. We can solve this directly. The value of n will becomes 49. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट SI। हर साल एक इक्वल अमाउंट ही बढ़ेगा। तो फर्स्ट 7 इयर्स में अगर x मिला है तो हर 7 इयर्स में जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जैक्टली x रुपीस ही होगा, ना कम और ना ही ज्यादा। लेट्स टॉक अबाउट CI। फर्स्ट प्रिंसिपल 7 था, 7 इयर्स में इट बिकम्स 2x, in another 7 years it becomes double again and becomes 4x, another 7 years it becomes double again and becomes 8x. So in CI the total duration will be 21 years. In SI, which is M, in SI the total duration is 49 years. We need n minus m, which is 49 minus 21, which is 28 years. Okay, तो इन SI में जो अमाउंट बढ़ता है वो AP में बढ़ेगा, बट CI में हमेशा GP में बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे, AP और GP का ध्यान रखेंगे तो कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्ट वी नीडेड इज 7x इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी कैलकुलेशन हमेशा ही अमाउंट की होती डायरेक्ट, इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होती। Okay, let's move on to next one. Okay, this is bit tricky questions, so before solving this one I'm giving you some basic one which you have solved might be. This is something very easy methods. So we have like mod of x plus mod of y equals to, let's see, k. Okay, so the total area bounded will be, let me break this screen into the parts so that I can get more area. So the total area is, in this case, will be case 2k square, area bounded. Okay, it does not matter whether plus or minus. In the both the cases, you'll get 2k square. Okay, let's see another. X plus minus a mod, it's 8 not 9, plus minus y plus minus b mod equals to k. Okay, now the area in this case, the area bounded in this case will be same as 2k square. There will be no change at all. Okay, the next case, if we have ax plus minus b mod plus minus cy plus minus d mod equals to k. Now the total area in this case will be k 2k square, which will remain same, but we have to divide by this a and this c. So you can see clearly, वो यहाँ पर प्लस माइनस में जो भी होगा उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई में होगा that will go into the divide. Okay, now finally move to our final case which was given in the question. So we have area in this case will be,
So if we have simple x plus y mod plus minus x minus y mod equals to k, the total area will be k square. हेलो, हाँ, मैं अभी बिजी हूँ, मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, जब चाहे तब रख दो, कोई बात नहीं। Sorry for the, yes, in this case the area will be k square, okay, and if we multiply anything with x or y, that will go into the divide. In the first three case, the graph will be always like this, okay. So इनके जो diagonals होंगे, diagonals will be parallel to x axis and y axis, but in this case we'll get graph like this, where the sides will be parallel to x axis and y axis, okay. तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, इसका एरिया हो जाएगा, इट्स 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, okay, it becomes 18. Okay, so this question will be in the two different format, like आपकी लाइंस लाइक ग्राफ कैसा बनेगा ये पूछा जा सकता है, समटाइम्स एरिया भी पूछ सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस and we have very fair chances to see a questions like this in our exam. Let's move on to next one. Okay, another question based on minima maxima, an important concept. Okay, so in this case हमारे पास क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. We can get the value of this, the product, and we supposed to find the minimum value of sum, or we might have given the minimum value of sum and we supposed to find out the maximum value of product. Okay, so let's see how to deal with this question. So first we see how many variables do we need. Like in right side we need a cube. It means we need 3 times multiplication of a. We are having here a twice, so we'll break this into 3 equal parts. Take care, 3 equal parts. It won't work if the parts will be unequal. We must need 3 equal parts, so each part will be 2a by 3. We need b twice. Here we have 3b. We'll break this into 2 equal parts. Okay, now finally we need c 4 times. We are having here c is 5c, so we'll have to break this into 4 parts, and all 4 parts must be equal. And sum of all these parts equals to 18. It is given. Okay, now in order to get the product maximize, each of the part which are getting added should be equal. Okay, तो अब अगर ये 9 parts हैं, you can count 3 plus 2 5 plus 4 9. 9 part हैं, हर एक part equal होगा, तो each part should be 18 upon 9, which is equals to 2. It means we need 2a upon 3, which is equals to 2, which will make a equals to 3. We need 3b upon 2, which is equals to 2, which will make b equals to 4 upon 3. We need 5 upon 4c equals to 2, which makes c equals to 8 upon 5. Now put this value into this and we'll get our answer. So it becomes 3 to the power 3, 4 upon 3 times 4 upon 3 into 8 upon 5 times 4. Now you can calculate and put the answers. Generally, you're supposed to put answer in the form of powers, like you can say 3 times 2 to the power 12 plus 4, 16, divided by 5 to the power 4. This is the way we supposed to write the answer.
So this is very important. Take care about this. Let's move on to next one. Okay. Here we are having a question based on replacement. Look careful about this question. Out of 135 liter pure milk, X liter is removed and replaced with water. From resulting solution, X liter solution is replaced with water, and this process repeated 2 more times. तो ये total जो process हुआ है ये 4 times हुआ है. Okay. So I think ये data is not fit for 4 times. This data is fit for, I think. Okay, this data is fit. Okay, this data is bit wrong. It's partially fit for 3 times, partially fit for 4 times. So let me change this ratio. Okay, so this ratio should be like 81 is to 544. Change this data from 598 is to 27 to 544 is to 81. Now the question is correct. Let's try to solve this one. So this is the ratio of water is to milk. This is water is to milk. In order to solve this question, we have to take care. We can solve only by using component which is not being added. ठीक है, हम उसी कंपोनेंट से सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं. It means we have to solve with milk. Okay, so we have to find the final ratio of milk is to solution. So finally we can say milk is 81 and solution is 625. This is what milk is to solution. Milk upon solution. We have to remove water and we have to put solution. Okay, and this is the final results we have got after how many times? You can see 1 time. It's another time, and then 2 more times. So total it has been done 4 times. Okay, so as it has been done 4 times, what we'll do, we'll find the 4th root of this. So it becomes 3 upon 5. It means after every replacement, 3/5 of solution left behind. Means you can say if 3/5 is left behind, it means 2/5 is being removed. So we'll find 2/5 of 135 liter. And this is our answer. Okay. So try to solve this question. Try to understand these questions very carefully. Very important type of question and very easy one. Okay, another question based on replacement. Important type. One has this, another has this. Here you can see important part. From both we removed equal quantity and then poured. Okay, it is not like removed from this, put in the other, and then removed from the second, put in the first one. It is not like this. We took 2 parts simultaneously from 2-1 and we put in each other. Okay, so in this case, this is very easy kind of question. You can say cost of solution is each vessel. Okay, दोनों में सेम हो गया. ठीक है ना, इसका मतलब है जब दोनों में सेम हो गया तो दोनों में जो मिल्क और वाटर और whatever the liquids are there like whiskey and vodka, ठीक है, तो उनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए. जब तक दोनों का रेशियो सेम नहीं होगा, प्राइस सेम नहीं होगी. और दोनों का रेशियो वही हो सकता है जो टोटल उनकी क्वांटिटी है. एंड यू कैन सी क्लियरली कि पहले में 180 लीटर है, दूसरे में 240 लीटर है. मींस ये 3:4 में अवेलेबल है. इट मींस ईच वेसल में जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो भी 3:4 में ही होगी. सो इट मींस फर्स्ट वेसल में अगर हम देखें तो रम अगर 3 है तो विस्की 4 होगी. ओके, इट में से मींस जितनी इसमें विस्की आई है उतनी इसमें से रम गई होगी. ठीक है ना, जितनी इसमें विस्की इन हुई है
उतनी ही इसमें से रम आउट हुई होगी एंड रिटर्न रिवर्स फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें से वो गई होगी। ठीक है, तो हम कोई भी एक निकाल सकते हैं। यू कैन से आउट ऑफ 7 4 इज विस्की, तो रिमूव कितना हो गया, 4 आउट ऑफ 7 of 180 लीटर एंड दिस इज व्हाट द टाइम। ओके, तो हमको इनको 4/7 निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ y पूछा है, कॉमन प्राइस पूछी है, तो हम देख सकते हैं ये 3:4 में है, तो हम डायरेक्ट 3:4 में इनकी प्राइस को ऐड कर लेते हैं। Further, you know this better how to solve this one. This is the value of y. Although इस क्वेश्चन में सिर्फ y पूछा था, हमें इस लेफ्ट वाले पार्ट की इसकी जरूरत नहीं थी, बट यस हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। एंड द फर्स्ट पार्ट दिस व्हिच वाज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 2-3 बार आ चुका है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ओके, question from time and work, a very common type of questions. 40 workers can complete a project in 40 days if one worker begin the work and each day started from duty, one more worker join him every day. How many workers will work on the last day? Okay, this is same as कितने दिन में काम complete हो जाएगा और on which day work will be completed. ठीक है, सिंपल एक ही क्वेश्चन है, but we don't know the number of n, so हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, दैट इज द वन वे जैसे लोग करते हैं, या फिर हम इसको इनइक्वालिटी बनाकर करेंगे अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सो लाइक फर्स्ट डे 1, सेकंड डे 2, nth डे एंड द टोटल वर्क शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द टोटल वर्क व्हिच इज 1600। इक्वेशन आके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ ना, सो द सम ऑफ दिस इज व्हाट n plus 1 upon 2 is greater than equals to 1600, or you can say n plus 1 should be greater than equals to 3200. That's all done here. इसके बाद हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, we should use a brain little bit. Like here you can see n is a number and n plus 1 is it's a next number, or you can say this is n square plus n. तो यहाँ पर हमें कोई स्क्वायर देखना पड़ेगा जो इससे पास हो। So 56 square is 3136. 56 square is 3136 and 57 square is 3249. Okay. So अगर हम 56 का स्क्वायर यूज करेंगे तो 56th डे अगर हम देखेंगे तो हमारी यूनिट्स कितनी बन जाएंगी, 3136 plus 56 which is less than 3200. It won't work. So that's why we have to take the value of n as 57 and it's done here. So last day 57 workers will work, or you can say the work will be completed in 57 days. Okay, if we need the answer in exact days, ठीक है, this is what on which day, but पूछा होगा exactly कितने दिन में, तो what we can do now, we'll go back to here. We'll put the value of n is 57 here. We'll get 57 into 29. The total number of units which produced in 57 days will be this. So multiply this. So this becomes 29 7s are 203. 29 5s are 145 plus 21 65. So you can see in 57 days 1653 units can be produced. So but we needed only 1600, so 53 units extra means last day we need only 4 units, but we can produce 57 units. So 56 days complete and 4 whole 57 days. This is what our final answer. So this answer may be for this particular question, last day कितने work करेंगे was 57, हमको यहीं पर आंसर मिल गया था, बट एग्जैक्टली कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ऑन विच डे कंप्लीट होगा, उसका आंसर ही 57 होगा, बट एग्जैक्टली कब कंप्लीट होगा, तो आंसर होगा 56 होल 4/57 days. Okay, let's move on to next question. This is again very common type of questions. ये किसी फॉर्मेट में हो सकता है, कभी आपके पास टैंक भरने को भी आ सकता है जिसमें एक एग्जिट पाइप लगा हुआ है,
ओके, कंटिन्यूअस खाली कर रहे होते हैं दैट इज इजी पार्ट, बट रुक रुक के खाली कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. So what they are saying, in each day climbs 10 meter, but during night slips down by 7 meter. So you can say एक दिन में पूरा डे टाइम में 7 मीटर ऊपर गया, फिर नाइट में डे टाइम में 10 मीटर ऊपर गया, नाइट में 7 मीटर वापस आ गया, मींस एक दिन में 3 मीटर कर चल रहा है. तो जनरली व्हाट वी डज 3 से हम 200 को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, तो व्हाट वी सपोज टू डू हियर कि लास्ट कंस्ट्रक्शन साइकिल मींस दिस इज द 10 मीटर व्हिच इज द कंस्ट्रक्शन साइकिल. ओके, जिसमें काम हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन साइकिल, ये स्लिप बैक हो रहा है तो इसको डिस्ट्रक्शन साइकिल में बोलूंगा. तो काम हमेशा आपका कंस्ट्रक्शन साइकिल पर ही कंप्लीट होगा. तो हम क्या करते हैं, लास्ट डे के लिए जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन साइकिल है उतनी यूनिट्स हम सेव करके अलग रख लेते हैं. ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे इसमें हमारे कितने साइकिल कंप्लीट हो सकते हैं. तो पर डे 3 यूनिट्स का साइकिल है हमें पता है, तो हम देखते हैं कितने साइकिल्स इसमें हमारे कंप्लीट होंगे. सो 3 6 जा 18 1 0. वी कैन सी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होना जरूरी है. अगर नहीं हो रहा है तो मिनिमम पॉसिबल नंबर जो चाहिए मींस यूनिट डिवाइड करने के लिए 2 चाहिए. तो हम 2 यूनिट्स इन 10 में जो हमने लास्ट डे के लिए रखी थी उसमें से बोरो कर लेंगे. तो फॉर लास्ट डे वी लेफ्ट विथ 8 यूनिट्स. वी कैन से 64 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 64 डेज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. और अब नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास 8 यूनिट्स बनेंगी, बट नेक्स्ट डे में वो 10 मीटर चल सकता है. तो हमारा कितना टाइम लग जाएगा 8/10 और 64 होल 4/5 डेज. सो दिस विल बी द आंसर. याद रखना है हमेशा कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइकिल है उसको माइनस करना है. कंस्ट्रक्शन साइकिल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. जब हम टैप भर रहे हैं तो लेट्स सी 2 पाइप भर रहे हैं तो वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइकिल में आएंगे. ठीक है, और जो भी डिस्ट्रक्शन साइकिल होगा मतलब जो टैप खाली करने वाला होगा, भले ही वो बीच में दिया होगा, हमें साइकिल चेंज करके उसे हमेशा सबसे एंड में ही डालना है. ओके, अच्छा, लेट्स मूव ऑन. Now, another question based on circular motion. It's a very good type of question. Two friends on 2 concentric circular tracks with circumference 400 and 600 meter with speed 5 meter and 12 meter per second. Stay from northmost point and the respective track. So how many times distance between them maximum possible in 1 hour? So it means there are 2 circles, one is like this, another is like this. These are concentric circle. Both started northmost point, means you can say both started from this. What we supposed to find out how many times distance between them is maximum possible, means maximum possible कब होगा जब एक पर्सन यहाँ है दूसरा पर्सन यहाँ है, means just opposite 180 degree kind of thing. Okay, तो हमें इन दोनों को पहले एक कॉमन सर्कल पे अगर लाना है तो व्हाट वील डू हियर, वी कैन सी हियर फर्स्ट पर्सन 400 मीटर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है, मींस ये 80 सेकंड्स में अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है. अनदर 50 सेकंड्स में अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट अपना साइकिल कम कर रहा है 50 सेकंड में, सेकंड सब कंप्लीट कर रहा है 80 सेकंड में, मतलब इनका. Okay, I think I have gone to the next question. Just a minute, hold on. Yes, sorry, one second back. Okay, this is again next one. This is our question. Yes. So second one will cover this in 50 seconds. तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:8. अब हम मान सकते हैं कि दोनों हमारे कॉमन सर्कल पर चल रहे हैं. ओके, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज सेम, इनकी स्पीड का रेशियो है 5:8. ओके, सो अभी रेस कब कंप्लीट होगी, इन 1 आवर. तो 1 आवर में यू कैन सी ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें 1 आवर में निकालना है. ठीक है, तो हम इसका एक कंप्लीट साइकिल देखते हैं. इसका कंप्लीट साइकिल कितनी देर का होगा, 80 एंड 50, इसका एलसीएम आएगा 400, मतलब 400 सेकंड्स का हमारा कंप्लीट साइकिल है. मतलब 400 सेकंड में ये पर्सन 5 राउंड लगा लेगा, दूसरा 8 लगा लेगा और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे.
ओके, तो हमारा साइकिल होगा 400 सेकंड का, हमारे पास टोटल टाइम है 1 आवर मीन्स 3600 साइकिल सेकेंड्स, 400 सेकंड का एक साइकिल है, तो ऐसे 9 साइकिल्स मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट पर्सन चलेगा 5 राउंड, सेकंड पर्सन चलेगा 8 राउंड, एक राउंड का गैप होगा तब इनकी फर्स्ट मीटिंग होगी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक राउंड में एक ही बार ऐसा होगा जब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, दैट विल बी हैपन ऑन जस्ट वंस। ओके, जरूरी नहीं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, डेफिनेटली दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, सो अभी हमारे पास कितनी मीटिंग होगी, ये 5 राउंड चलेगा, ये 8 राउंड चलेगा, 3 राउंड एक्स्ट्रा, 3 मीटिंग होंगी। सिमिलरली 3 बार वर्टिकली अपोजिट होंगे, लाइक सॉरी डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। सो इन एवरी वन साइकिल, जब पहला पर्सन 5 राउंड चलेगा, दूसरा पर्सन 8 राउंड चलेगा, 3 बार दे विल बी जस्ट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, और ऐसे हमारे टोटल 9 साइकिल्स हो रहे हैं। सो टोटल देयर विल बी 27 टाइम्स इन 1 आवर व्हेन दे आर just maximum possible distance, just at maximum possible distance. Okay, and वो पॉइंट डेफिनेट है कि यहाँ और यहाँ तो नहीं होंगे, दैट विल बी डिफरेंट, लाइक एक पर्सन यहाँ होगा, दूसरा पर्सन यहाँ होगा, ऐसे होंगे। ओके, एक अनदर ऐसे आएगा जब एक पर्सन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, और एक फाइनली आएगा, एक पर्सन यहाँ होगा और दूसरा यहाँ होगा, ऐसे करके 3 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। Let's move on to the next one. Another question based on circular motion. Okay, so you can say there is a circular track on which 3 persons A, B, and C are running. A and B are running in the clockwise direction, means in this direction, and C is running in anti-clockwise direction. So speed of A is 5 meter per second, B is 7 meter per second, and C is 9 meter per second. Okay, this is the simplest ratio as well. So we can see A and B are running in the same direction, so they will meet at 2 different points. Okay, B and C running in opposite direction, so they'll meet at 7 and 9, 16 distinct points. Similarly, A and C running in opposite directions, they'll meet at 5 plus 9, 14 distinct points. Okay, अच्छा, ये जो रेशियो चाहिए हमें इंडिविजुअल का चाहिए, जिन दो को कंपेयर कर रहे हैं हमें उन दोनों का रेशियो चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट पर्सन की स्पीड 3 होती और थर्ड की 9 होती, तो 3:9 बिकम्स 1:3, तो वो 4 पॉइंट्स पर ही मिलते, 12 पॉइंट्स पर नहीं मिलते, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो अब हमको मिल गया ये कितने कितने पॉइंट से मिलेंगे ना, पूछा क्या है, at how many distinct point will exactly 2 of them will meet, not all 3. अच्छा, all 3 कितने पॉइंट से मिलेंगे, हमें क्या करना होता है कि ये जो भी आता है इसका हम HCF निकाल लेते हैं। तो ये ऑल 3 2 पॉइंट्स पर ही मिलेंगे, आप किन्हीं भी दो का HCF ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, at how many distinct points. Okay, so A and B 2 पॉइंट से मिलेंगे, A and C 14 पॉइंट से मिलेंगे, एंड B and C 16 पॉइंट्स से मिलेंगे, टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 32. ओके, इन 32 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर 3-3 लोग मिलेंगे। ये 32 टोटल मीटिंग हुई है, एक मीटिंग में 2 लोग भी हो सकते हैं, एक मीटिंग में 3 लोग भी हो सकते हैं। ओके, तो इन 32 में से क्या हो जाएंगी, 6 मीटिंग्स कौन सी हो जाएंगी, जिसमें ABC तीनों मिल रहे होंगे। 6 क्यों काउंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि 3 लोग एक पॉइंट से मिलेंगे, तो एक पॉइंट पे टोटल काउंट होंगे वो 3 बार काउंट होंगे, A के लिए, B के लिए, C के लिए, तो ऐसे 2 बार हो गए, तो 6 हम वो माइनस कर देंगे। अब हमारे कितने बचे, 26 मीटिंग से, हर मीटिंग्स में कितने लोग हैं, एग्जैक्टली 2 लोग हैं हर मीटिंग में, एग्जैक्टली 2 लोग हैं। No. So they will meet at 26 distinct points. A and B 14 points मिलेंगे, yes. So why you are subtracting, A B के साथ काउंट हुआ, A C के साथ काउंट हुआ, B C काउंट हुआ, yes. So they will meet for at 26 distinct point.
ओके, दिस इज डन हियर। सिंपली बस इतना ही करना है। तो 2 पॉइंट्स पे तीनों मिल रहे थे, इनलिए 2 3 जा 6, क्योंकि एक मीटिंग जब होगी तो एबी के साथ काउंट करेंगे, एसी के साथ काउंट करेंगे, बीसी के साथ काउंट करेंगे, तो हर मीटिंग को हमने 3 बार काउंट कर लिया होगा। सो दैट्स व्हाई हम उनको 2 मीटिंग को मींस 6 बार काउंटिंग होगी, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस विल बी द पॉइंट्स जहां पर एग्जैक्टली 2 लोग मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स चाहिए, तो दैट विल बी 26 + 2 28 हो जाएंगे। Okay, let's move on. S is a set of all natural numbers which are less than 100 and has one HCF 1 with 2500. Find the sum of all elements of S. Okay. तो अब इस क्वेश्चन को हम कितने भी तरीके से कर सकते हैं। लाइक हम ये भी कर सकते हैं कि जितने भी नंबर, लाइक यू कैन सी 2500 is again 2 to the power 4 and 5 to the power 2 means, sorry, 5 to the power 4 and 2 to the power 2. It means any number which has 2 or 5, any number which has 2 or 5 is either 2 or 5 is not co-prime with 2500. ठीक है, तो 2500 से co-prime तभी होगा जब नंबर के पास ना तो 2 होगा और ना ही 5 होगा। ठीक है, और हमें जो 100 से छोटे नंबर है जिनके पास ना तो 2 है और ना ही 5, उन सबका सम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स का सम निकाल सकते हैं जो 2 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं, और टोटल सम में से हम उसको माइनस कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये रहे 100 तक के नंबर्स जिनके पास 2 नहीं है और जिनके पास 5 नहीं है। So it becomes 100 1/2 into 4/5 becomes 40. Sorry. So 1 से लेकर 100 तक टोटल 40 नंबर्स आएंगे। 1 से लेकर 100 तक टोटल 40 नंबर्स होंगे जिनके जो कि 100 के साथ कोप्राइम होंगे। ठीक है, लाइक या फिर 2500 के साथ कोप्राइम होंगे, एक ही बात है, बिकॉज दोनों में 100 के फैक्टर में भी 2 और 5 ही आ रहे हैं और 2500 फैक्टर में भी 2 and 5 ही आ रहे हैं। ओके, सो 40 नंबर्स होंगे। अब बारी आती है उनके सम की। ठीक है, तो सम के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, हमें कुछ भी नहीं करना है कि जब ये 40 नंबर है तो जैसे हम देखते हैं कि एक नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं तो आधे फैक्टर आते हैं जिनका प्रोडक्ट नंबर के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे 20 के फैक्टर लिख रहे हैं तो 1 into 20, ये 2 फैक्टर होगा, उनका प्रोडक्ट 20 के बराबर होगा, 2 into 10। सिमिलरली जब हम कोप्राइम देख रहे हैं तो उनका सम रिजल्टेंट के बराबर आता है। जैसे पहला नंबर 1 होगा तो लास्ट नंबर 99 होगा, दूसरा नंबर 3 होगा तो सेकंड लास्ट नंबर 97 होगा। ऐसे करके हमारे 40 नंबर्स में एग्जैक्टली 20 पेयर्स बनेंगे और हर एक पेयर का सम कितना आ जाएगा, हमारा नंबर मींस 100 के बराबर। तो उन सारे नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, तो ये बेसिकली कोप्राइम वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें सम निकालना होता है सारे नंबर जो कोप्राइम है उनका। Let's move on to next question. How many different AP are there which has first term as 1 and last term 5041 and has at least 3 terms? Okay, तो ये क्वेश्चन देखने में हमें AP का लग सकता है, बट ये क्वेश्चन AP का नहीं है, ये क्वेश्चन है वेक्टर्स का। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास, लास्ट टर्म है आपके पास। अब आपके पास सारा केस बनता है कि कितने डिफरेंट एपी बना सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं, हम एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लाइक लास्ट टर्म लाइक 5041 L equals to A plus n minus 1 into D. You can see n minus 1 into D equals to 5040. ठीक है, अब हम ऐसे 2 नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 5040 आ रहा है। यस, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, इसमें हम 1 कंसीडर नहीं कर सकते और 5040 भी कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, देखते हैं। तो अब डेफिनेट है कि डी को भी इसका फैक्टर होना पड़ेगा, ठीक है, और n-1 को भी इसका फैक्टर होना पड़ेगा।
ठीक है, और हमें यही पता है कि एटलीस्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो n की वैल्यू n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यू कैन नॉट पुट n, 2 पुट आप नहीं कर सकते, n को मिनिमम आपको 3 पुट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी 5040 के कितने फैक्टर्स होंगे। सो 5040 is simply, you can factorize this, you will find this 5040 is 7 into 8 into 9 into 10, 2 to the power 4, 3 to the power 2 and 7 to the power 1 and okay 5 to the power 1, ये आ जाएगा 7 8 9 10। यस, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 5 into 3 into 2 into 2 which is 60। ओके, सो ये 60 फैक्टर्स होंगे 1 से लेकर, ठीक है। सो n-1 कैन नॉट बी 1, ओके, बाकी सारी वैल्यू आ सकती हैं। सो एक्सेप्ट 1 देयर विल बी टोटल 59 such solutions, that will be our answer। ओके, तो 59 डिफरेंट एपी बन सकती हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 होगा और लास्ट टर्म 5041 होगा। ओके, okay, this question belongs to permutation and combination and basically from distribution। why I am saying distribution, because हमारे पास identical object हैं जिनको हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बिकॉज आइडेंटिकल है तो सिर्फ नंबर के बेस पर ही हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हर एक को मिनिमम क्वांटिटी दे रखी है, तो एज सच शिल्पा, श्वेता एंड समीरा। ओके, तो हर एक को पहले 12 पेन देने हैं हमको, तो टोटल 24 पेन थे। ओके ओके, तो 24 है तो हर एक को हम 12 तो नहीं दे पाएंगे, ये थोड़ा सा डेटा गलत हो गया। लेट्स मेक इट 6। ओके, चेंज इन डेटा, तो 6 ईच को हमने पहले पेन दे दिए। देन 5 बॉल्स, वी हैव 15 बॉल्स, तो सबको अगर 5 बॉल्स दे देंगे तो हमारे पास देखो पेन हमने 6 दे दिए थे 24 में, तो 6 पेन हमारे पास बचे थे। हमने तीनों को 5 बॉल दे दी, 18 है तो बॉल्स बचेंगी हमारे पास 3। चॉकलेट्स हमारे पास 41 है, तीनों को 12 दे देंगे हम, चॉकलेट्स हमारे पास बचेंगी 5। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमारे पास 6 आइडेंटिकल पेन्स हैं और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें 6 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 डिवाइडर लगाने पड़ेंगे। तो 6 आर्टिकल हो जाएंगे हमारे, प्लस 2 हमारे डिवाइडर हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट 8। इन 8 को अरेंज करने के हमारे पास वे होंगे 8C2 और you can say 8 factorial upon 6 factorial into 2 factorial, because 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, उसमें से 6 पेन एक जैसे हैं और 2 डिवाइडर एक जैसे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। सिंपली यू कैन से 8C2। 3 आर्टिकल्स को 3 लोगों में बांटना है, 3 आर्टिकल्स को 3 में बांटना है, तो डिवाइडर लगेंगे 2, तो टोटल हो जाएंगे 5C2। अगेन 5 आर्टिकल है, 3 लोगों में बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडर लेंगे, 5 आर्टिकल हैं, तो 7C2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, 8C2 into 5C2 into 7C2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। Okay, good one. This questions belongs to, you can see, quadratic equation. Here important given कि A, B and C are rational, और हम देख सकते हैं रूट इरेशनल है। जब कोफिशिएंट रैशनल हो और रूट इरेशनल होंगे तो रूट हमेशा कंजुगेट पेयर होंगे। मींस अगर एक रूट है 5 + 2 √3, तो दूसरा रूट होना पड़ेगा 5 - 2 √3। ओके, एक है 5 + 2 √3, तो दूसरे को 5 - 2 √3 होना पड़ेगा। Got it? Now let's do it. So you know the sum of root होता है -b/a,
यू कैन से b अपॉन a इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 25 माइनस 12 मींस 13। ओके यस, ये हो गया आपके पास सम ऑफ रूट और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। वी आल्सो नो b इक्वल्स टू c क्यूब, वी कैन से c क्यूब अपॉन c क्यूब इक्वल्स टू 10a and c equals to 13a. Okay, so yes, we can do cube of this and then divide. So c cube हमारा cancel हो जाएगा, we'll get 10a upon 13 cube is 2197, a cube equals to 1, it becomes a square will be 10 upon 2197 and a equals to square root of 10 divided by 2197। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक रूट इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा और कॉन्जुगेट पेयर होगा। सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, एक रिलेशन आपको दे रखा है b इक्वल्स टू सी क्यूब। नाउ सिंपल, हमारे पास सी क्यूब की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वेशन से सी क्यूब कैंसिल आउट कर दिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। For how many integral values of f(x) is greater than 0? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमें बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, दिस इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, दिस बिकम्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे, इट बिकम्स x प्लस 2 एंड x माइनस 1। ओके, अब जैसे हम रूट निकालते हैं, इंडिविजुअल ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके रूट निकालेंगे तो एक रूट आ जाएगा 6, फिर 1, देन माइनस 2, देन माइनस 3। ओके, अब देखिए अगर हम x से कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करें सारे तो ये हमारे पॉजिटिव आएंगे। यही हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सब पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे पास ऊपर से शुरू होगा ग्राफ। ओके, अब f(x) is greater than 0, you can see clearly infinite points आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ग्रेटर की बजाय लेस देन 0 होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेटर में तो हम सॉल्यूशन बता ही नहीं पाएंगे, दैट विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। सो लेस देन 0 वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो -3 से -2 के बीच में देयर विल बी नो इंटीग्रल वैल्यू, बट फ्रॉम 1 and 6 के बीच में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 4, 5, देयर विल बी 4 इंटीग्रल वैल्यूज। ओके, इस क्वेश्चन में मल्टीपल वर्जन्स आ जाते हैं, लाइक एक ये दे दिया, ये दूसरा, इसमें अगर ग्रेटर ही पूछना होता तो फिर क्या बोल देते कि x लाइज बिटवीन -10 एंड +10। अभी ऐसे करके आपको एक रेंज दे देंगे एंड देन दे कैन आस्क कि कितनी ग्रेटर वैल्यूज आएंगी। तो इस केस में अगर मुझे ग्रेटर चाहिए तो क्या क्या मिल जाएगा मुझे, -10 से ज्यादा है तो -9 से लेकर -4 तक, टोटल 6 वैल्यूज। फिर यू कैन से 1 to 2 के बीच में नहीं आएगी, फिर +6 से +10 के बीच में लाइक 7 to 9 3 वैल्यूज। ओके, तो टोटल देयर विल बी 9 वैल्यूज। तो ग्रेटर अगर इस केस में आपको देंगे तो एक लिमिट रख देंगे, सर्टेन लिमिट, जिससे कि आप आंसर बता पाए, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन में स्मॉलर वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक कैसे करना है, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें ब्रेक करना होगा। Okay, this is very popular and common type of questions you can find in examinations now। और ऐसे क्वेश्चन पे जनरली बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें हम क्या करेंगे, 100 और 10 टर्म, इतने सारे टर्म तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करना होता है इस टाइप क्वेश्चन को। नाउ यू कैन से हर एक इवन टर्म जो है वो नेगेटिव है, हर एक ऑड टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेट्स सॉल्व। सो हमें 100 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इससे इन सबका सम निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा,
तो हम एक काम करते हैं, 99 टर्म्स तक का सम अगर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 99 टर्म्स तक का सम, तो इट बिकम्स 2 into 99 square minus 5 and 5 into 99, ये आ गया 99 टर्म्स तक का सम। 2 into 99 स्क्वायर माइनस 5 into 99, ये आ गया 99 टर्म्स का सम। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर मैं 100 टर्म का सम निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 into 100 स्क्वायर माइनस 5 into 100, ये आ गया 100 टर्म्स तक का सम। अगर मैं 100 टर्म्स तक के सम में से 99 टर्म का सम अगर माइनस करूंगा तो 100 टर्म मिल जाएगा। ओके, क्लियर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, 100 टर्म जो है अकॉर्डिंग टू इस वो नेगेटिव है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी दिस इज S100 और S99, तो हम क्या करेंगे, S100 माइनस S99 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, T100 एंड विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, दैट इज द की पॉइंट। ठीक है, इसको अब आप जैसे चाहे सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी आए। तो ये हो जाएगा कितना, इट्स 398 माइनस, ओके, minus 5. So 393. So T100 is minus 393. This is T100. Okay. So that was the key point, क्योंकि इससे ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। अभी अगर हम 101 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 2 अपॉन 101 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 101। अगर मैं S101 में से S100 घटाऊंगा तो मेरे पास T101 आ जाएगा, और T101 ऑड टर्म है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा 402, ओके, माइनस 5 मींस 397। अब ये 397 और ये आ गया आपका माइनस का 393, ये प्लस का 397, अगर आप इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4। दैट इज द की पॉइंट, बिकॉज अगर आप इसको नेगेटिव साइन ध्यान नहीं देंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, विच इज 790। सो टेक केयर अबाउट दिस। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऑलमोस्ट कभी भी सॉल्व नहीं करना होता है, आपके पास डायरेक्ट हमेशा आंसर निकल कर आता है। एक दो स्टेप हाँ करनी पड़ेंगी, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास ज्योमेट्री का। So we have a triangle ABC here. Let's see, this is A, this is B, and this is C. AD is to BD, 2 is to 1. AE is to CE, 2 is to 3. Triangle ADE, this is triangle ADE, area of this is 8. हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ओके, तो ऐसा करने के लिए, आप सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है, किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरी लाइन को मिला लो। आप CD भी मिला सकते थे, DE भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमें एक बहुत बेसिक रूल याद रखना, और बेसिक रूल क्या है, अगर किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से एक लाइन जाती है तो जिस रेशो में वो अपोजिट साइड को काटेगी उसी रेशो में एरिया डिवाइड होगा। व्हाट डज इट मीन, देखो E वर्टेक्स है और ट्राइंगल ABE है, इस वर्टेक्स से एक लाइन गई है EB जो साइड AB को 2:1 में डिवाइड कर रही, तो एरिया भी 2:1 में ही डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका एरिया 8 है तो नीचे वाले का एरिया हो जाएगा 4, मतलब ट्राइंगल ABE का एरिया हो गया आपके पास 12। ओके, नाउ फॉरगेट द लाइन DE, जस्ट रिमेंबर द लाइन BE।
अब ये जो लाइन BE है ये पूरे ट्राइंगल ABC को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, विच जो अपोजिट वर्टेक्स को 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी 2:3 में डिवाइड हो रहा होगा। और हम देखते हैं ऊपर वाले का एरिया कितना है 12, तो नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा 18, तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। दिस क्वेश्चन नीड्स नथिंग टू वरीड अबाउट, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है कि वर्टेक्स से लाइन जाएगी अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। Let's move on. Yes, this is very common type of questions. Almost हर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जनरली इस क्वेश्चन को देखकर यही होता है कि डेटा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। So what this question is saying, 1600 पर स्टूडेंट वो दे रहा है जब तक 50 लोग हैं और उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब नंबर ऑफ पीपल 75 हो गए, अभी भी सबसे सेम ही अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट हो गया 250, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन से टोटल कॉस्ट निकालकर वेरिएबल रखकर आंसर निकाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि हम कम मेहनत करके आंसर ले आए। एंड हाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, तो इसके लिए हमें एक बहुत बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो चेंज होती है विद नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके जी, ये हमने आज तक पढ़ा है। ओके, बट दिस हैपेंस फॉर द टोटल प्रोजेक्ट और एंटायर कॉस्ट। बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी टॉक अबाउट अ यूनिट कॉस्ट, मतलब अगर मैं बात करूं कि एक प्रोडक्ट की बात करें तो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद समझोगे क्या फिक्स है और क्या वेरिएबल है, ठीक है। लेट्स सी, हम एक पिकनिक पर जाते हैं, एक हम बस हायर कर लेते हैं 5,000 रुपए में, ठीक है। अब बस वाला ये तो नहीं कहेगा कि आपकी बस में 6 बैठ रहे हैं कि 8 बैठ रहे हैं कि 10 बैठ रहे हैं, कितने ही बैठे 5,000 लगेगा, ठीक है। फिर हमने एक रेस्टोरेंट वाले से बात कर ली, उसने बोला भाई पर प्लेट 200 चार्ज करूंगा मैं लंच के लिए, ठीक है। सो ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे लोग चेंज होंगे वैसे वैसे कॉस्ट चेंज हो जाएगी, दैट इज व्हाट हैपेंस। नाउ लुक ऑन द अदर पर्सपेक्टिव, अगर मैं बात करूं कि बस में 10 लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो पर हेड लंच कॉस्ट कितना है 200, विच इज फिक्स्ड, चाहे 10 जाए या 20 जाए या 50 जाए, पर हेड लंच कॉस्ट फिक्स है पर पर्सन और पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होगी, चेंज नहीं हुई। नाउ लुक एट द फिक्स कॉस्ट, 5,000 रुपए है, अगर बस में 10 लोग जाएंगे तो हर एक को कितना पे करना पड़ेगा 500, 20 जाएंगे तो हर एक को कितना पे करना पड़ेगा 250, अंडरस्टैंड। तो जब हम यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे तो फिक्स प्राइस वेरिएबल हो जाएगी एंड वेरिएबल प्राइस फिक्स हो जाएगी, गॉट इट। अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो नंबर जो फिक्स प्राइस है वो किस साथ चेंज होगी, नंबर ऑफ पीपल के साथ। तो पहले 50 पीपल थे, अब 50 से बढ़कर 75 हो गए, मतलब 2 से बढ़कर 3 हो गए, तो इसका मतलब है कि फिक्स कॉस्ट 3 से घटकर 2 हो जानी चाहिए, मतलब पहले फिक्स कॉस्ट 3x थी तो अब 2x हो जानी चाहिए। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट में 50 रुपए कम हो गए, क्योंकि 50 रुपए का प्रॉफिट पड़ गया, मतलब उसकी कॉस्ट कम हो गई होगी क्योंकि पैसे तो नहीं ले रहा है, ठीक है ना। इट मींस वी कैन से कि फिक्स कॉस्ट हमारी 50 रुपए कम हो गई है। तो फिक्स कॉस्ट 50 रुपए कम हो गई, तो 3x माइनस 2x शुड बी इक्वल्स टू 50, मतलब फिक्स कॉस्ट पहले 150 थी और अभी ये फिक्स कॉस्ट घटकर हो गई है 100 रुपए। डन। नेक्स्ट थिंग, अब वो बोल रहा है कि हमें 75 से 80 लोग करने, 75 से 80 करने, इसका मतलब क्या है, मतलब 15 से 16, मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 16 से 15, तो कम कितनी हो जाएगी 1/16 और 6.25, तो ये जो 6.25 कम होगा ये भी प्रॉफिट में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट चाहिए था हमें, तो 80 लोगों पर 250 तो पहले से ही मिल रहा है, प्लस 80 लोगों पर हर एक पर 6.25 और बढ़ गया, इट बिकम्स 20,000 प्लस 500, so the final answer is 20,000 and 500। कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जितना लिखा है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, एल्स इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ सिंगल स्टेप क्वेश्चन, 2 स्टेप में ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है।
Okay, let's move on to next question. So okay, let's have another question based on quadratic function. Quadratic function attains maximum value 4 at x equals to 2. Find the sum of the roots of gx if gx equals to 2 this kind of functions. ठीक है, so ज्यादातर बच्चे जो लोग मैथ्स में जिनका हाथ तंग है ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ ही देंगे. एक तो फंक्शन ऊपर से फिर एफ एक्स और जी एक्स मिनिमा मैक्सिमा एन काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, so very easy kind of question is this. Now let's see what will happen with this. The first thing, function की maximum value attain कर रहा है, it means this is inverted function like n. Okay, at x equals to 2 it means you can see this is what the x equals to 2 here. Okay, now sum of roots की बात कर रहे हैं. So important कि ये जो पॉइंट आता है ये एकदम सेंटर में आता है. ठीक है, तो ये अगर रूट एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है तो इन जनरल दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. ओके, अगर हमसे fx के बारे में पूछा होता तो वी कुड हैव सेड कि इसके सम ऑफ रूट्स जो हैं वो 4 आ जाएंगे. ठीक है, ठीक. अब देखते हैं अब जो इसमें हमें चेंज दिया है उन सब से हमें क्या क्या फर्क पड़ेगा. सबसे पहले हमसे बोला है कि f(x - 2). ठीक है, तो x - 2 कर दिया है. इसका मतलब क्या है कि जितना भी आप x में चेंज करते हैं x में प्लस करोगे तो वो रूट्स के साथ रिवर्स हो जाएगा. मतलब x में -2 करेंगे इसका मतलब है रूट्स की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस 2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू बीटा प्लस 2 हो जाएगी. तो जो मिनिमम पॉइंट्स आया था ये 2 की बजाय थोड़ा और आगे बढ़कर 4 आ जाएगा. पहला चेंज ये हो गया. तो नए रूट्स अगर मैं अल्फा डैश एंड बीटा डैश मानूं तो इनका सम हो गया है 8. ओके, नाउ अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. अगली बार अब नेक्स्ट थिंग उसने हमसे बोला है कि इस फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. जब रिजल्टेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रूट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्राफ है हमारा वो ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा. कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, बट ये अभी भी इसका मिनिमा और मैक्सिमा जो पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा. तो इससे हमारे मिनिमा मैक्सिमा पर या रूट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट उसने बोला पूरे फंक्शन में 3 ऐड कर देंगे. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ था ये हर एक की वैल्यू ऊपर उठ जाएगी. मतलब हमारे जो रूट्स थे पहले उससे रूट्स हमारे दोनों बढ़ जाएंगे. ओके, कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा. बट व्हाट विल हैपन कि ये जो हमारा 3 ऐड हुआ है इससे एक रूट जितना बढ़ेगा दूसरा रूट एग्जैक्टली उतना ही कम रहेगा. मिनिमम मैक्सिमम वाला पॉइंट वही रहेगा और सम ऑफ रूट सेम रहेगा. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 एंड दैट्स ऑल डन. ओके, सो इट नीड्स नो चेंज एट ऑल. पूरा चेंज क्या हो रहा है, जो हमने x - 2 किया है इससे हर एक रूट की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी. हर एक रूट की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी तो सम में 4 ऐड हो जाएगा एंड दैट्स ऑल डन है. Okay, so very easy questions. If you know the concept of graph shifting, it's done here. And I hope मैंने इसमें पूरा आपके साथ कवर किया है. Let's move on to next question. Okay, another question based on permutation and combination. Sum of all 5-digit numbers which can be formed using digits. These are given. Each digit just once. Okay. तो मेरे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है मैंने. तो हमें 5-digit नंबर्स का सम करना है तो हम एक काम करते हैं, पहले 5 बार 1 लिख लेते हैं. कितनी बार 1? जितने डिजिट्स का नंबर है 5 बार 1. ठीक है, इसके बाद फिर हमें सम चाहिए तो हम करते हैं डिजिट्स का सम इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजिट क्या दे रखें. इट बिकम्स 1 + 2 + 3 + 3 + 7. तो ये हो जाएगा 16. Then
we have to find the number of numbers we can form. Okay, अब नंबर ऑफ नंबर्स देखो, इन 5 डिजिट की हेल्प से कितने नंबर बन सकते हैं. उसने बोला है एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, तो वी कैन सी 5 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे, बट इसमें से 2 3 एक जैसे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 2. सो देन अगेन 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, एंड फाइनली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स. कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं, डिवाइडेड बाय number of digits mean 5, and this is what our answer. Okay, so 5 times 1 into 16 into 12, done here, nothing else required. Okay, one more time, look at this logic. The one thing, number of ones कितनी बार, जितने digit का number बनाना है, 5 digit, then multiplied by sum of digit, then नंबर ऑफ नंबर्स. अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 4 डिजिट हैं, तो 5 की पावर 4 होता, सॉरी 4 टू द पावर 5 होता, एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट. 4 डिजिट है तो 1/4 होता अगर रिपीटेशन अलाउड होता, तो बट नहीं है, तो हमारे पास 5 डिजिट है, हम इन दोनों को 2 अलग अलग डिजिट है. डिवाइड बाय 2 क्यों किया है कि जब भी हम नंबर्स बनाते हैं, जब भी कोई लेटर या डिजिट रिपीट होता है तो उसमें फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज होने से नए नंबर्स नहीं बनते. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. यस, अनदर क्वेश्चंस. इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, बट दिस इज क्लियरली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस. हाउ मेनी वेज can join points this to point this through origin using shortest path such that at any point on locus coordinate of x or y or both are integer. Okay, तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो डेफिनेटली आपको आता भी होगा और आपको ने पहले देखा भी होगा. एक सिर्फ छोटा ग्रिड बनाया मैंने एग्जांपल के लिए कि एक पर्सन को ए से बी तक जाना है, और ये जो लाइंस हैं ये रोड है, इस पर ना तो ये पीछे आना है इसको और ना ही इसको वापस जाना है. ऑल्सो ये तो हो गया, और शॉर्टेस्ट पाथ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाना है, तो लेट्स सी वो सी से होकर ही जाएगा. ठीक है, तो ए को अपनी गर्लफ्रेंड बी से मिलने जाना है, फ्लोरिस्ट सी से पास से रोज लेकर जाएगा. ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस. ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ लिखने का तरीका है. आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो हमको पहले -3 5 से 0 0 तक ले जाना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3, वर्टिकल डिस्टेंस 5. ओके, तो टोटल हो जाएंगे 3 + 5 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. एंड अभी हमको 0 0 जाना है 6 - 4 तक. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6, वर्टिकल डिस्टेंस 4, तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. दैट्स ऑल डन हियर. ओके, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस. लाइक किसी को ए से बी तक जाना है, तो इस फिगर में पर्टिकुलरली 1 डायरेक्ट देखते हैं विदाउट सी. 1 2 3 4 4 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 1 2 3, टोटल 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. इसमें सी अभी इंक्लूड नहीं किया है. अगर सी इंक्लूड करके चलेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल से सी पर पहुंचना पड़ेगा पहले, तो 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सी तक पहुंचने का. अब सी से बी तक के लिए कितने हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, तो टोटल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा वाया सी, ये हो जाएगा विदाउट सी, और ये है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो गिवन था. ओके, let's look at another common question or popular questions in PNC. Okay, let's look at another very popular questions, very common questions. There are 15 cars in a row. It's a distinct, not distance. एक रो में 15 है, उसमें से आपको 4 पिक करनी है.
कोई भी दो एडजेसेंट वाली आप पिक नहीं कर सकते और एक्सट्रीम वाली पुट नहीं कर सकते। तो इट मींस फर्स्ट और लास्ट आप भूल जाएं, बीच में देयर आर 13, इन 13 में से कोई आपको 4 पिक करनी है। ओके, सो इसको हमें क्या करना होता है, इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन से करते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब क्या है कि हमने एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कि एक रो में हमको 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज बिठाना है सच दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर वाला कंसेप्ट हमें लगाना है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले इसमें जो 4 निकालनी है वो निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनको कितने तरीके से हम रख सकते हैं सच दैट नो 2 कार्स पुट टुगेदर वाला। तो 2 एक्सट्रीम छूट गई, बाकी बची 13, इसमें से हमने 4 निकालनी है तो 4 हम निकाल लेंगे तो बाकी बचेंगी 9। ठीक है, अब देख सकते हैं 9 कार के आसपास कितने स्पेस खाली होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन 10 प्लेस में से कोई भी हम 4 प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे जिन पर से हमें वो कार को रखना है। तो जितने डिफरेंट तरीके से हम 9 के बीच में 4 इंसर्ट कर सकते हैं सच दैट नो टू टुगेदर, एग्जैक्टली उतने ही वेज में हम इन कार को बाहर पुल कर सकते हैं। सो दिस इज 10C4। सेम क्वेश्चन हमको मिलता है कि जब हमें 2 स्टेशंस के बीच में टिकट्स लेने होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन हमें मिलता है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है बी तक जा रही है और बीच में कितने इंटरमीडिएट स्टेशन पे उसको रुकना है, तो वो वाला क्वेश्चन भी होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so it's a time and work question again, and this is a very common topic. A can complete a project in 40 days, B in 60 days. They together begin the work, and after some days, B is replaced by C, and the project completed in 23 days. Had this replacement done 6 days earlier, the entire project would have been done in 22 days. ठीक है, तो अब आपको बताना है सी अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमें एक बहुत सिंपल सा रिलेशन निकालना है और हम रिलेशन कैसे देख सकते हैं, और वो ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम सेकंड और थर्ड केस के बीच में देखें कि 6 डेज अर्लियर, तो अगर हमने 6 डेज अर्ली मतलब 6 डेज बी की जगह पर अगर सी को रख लिया तो हमारा पूरा काम एक दिन पहले हो जाएगा। तो पहले भी एक दिन हुआ था, इसका मतलब 6 डेज पहले किया होगा अर्लियर। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट केस हमें यहाँ पर एक रिलेशन क्या मिल जाएगा कि अगर बी को रिप्लेस कर दिया जाए सी से, तो 6 दिन में सी जितना काम करेगा वो कितना करेगा। ठीक है, अच्छा काम एक दिन पहले हो जाएगा, मतलब अब सी को 5 दिन ही काम करने का टाइम मिलेगा क्योंकि 6 डेज होना था। तो 6 डेज में बी और 1 डे में ए जितना काम करेंगे उतना काम सी 5 डे में कर लेगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लुक एट दिस वन मोर टाइम कि अब अगर हमने फॉर एग्जांपल एक एक्स डे पर हम दे रहे थे बी को, सी को रिप्लेस कर रहे थे सी को, अगर हमने x - 6 डे पर कर दिया तो काम यहाँ की बजाय एक दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो सी को 6 की बजाय 5 दिन ही काम करना पड़ेगा और ए को भी 6 की बजाय 5 दिन काम करना पड़ेगा। तो ए का 1 डे का वर्क ये भी सी करेगा और बी का पूरा 6 डे का वर्क भी सी ही करेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन सॉल्व करने को स्टैंडर्ड तरीका हमारा क्या होता है, हम 40 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 120, तो हम अज्यूम करके चलते हैं हमारा टोटल वर्क 120 यूनिट्स का है। ए 40 डे में कर रहा है, मतलब ए बनाएगा 3 यूनिट्स ए डे, बी 60 डेज में कर रहा है, इट मीन बी बनाएगा 2 यूनिट्स ए डे। बस यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इस समय आ जाएगा कि सी एक दिन में कितने यूनिट्स बना रहा है। यू कैन सी 12 प्लस ए 3 15 विच इज 5C, तो सी बनाएगा 3 यूनिट्स अ डे। पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाएंगे, यू कैन सी क्लियरली 120 यूनिट्स का वर्क है डिवाइडेड बाय 3। सी 40 डेज में अलोन अपना काम कंप्लीट कर सकता है। ओके,
यहाँ पर आपको और कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ वो कंडीशंस देखनी है और उसमें रिलेशन सेट करना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं, मॉड भी लगा हुआ है, इनइक्वालिटी भी है, तो देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस। देयर इज वन वेरी सिंपल थिंग, हमें इस मॉड और इस मॉड का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस शुड बी 6 लेस देन 6 होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ सेकंड थिंग, अगर हम इंडिविजुअल ब्रैकेट की तरफ देखें तो ये है x+2 और ये है x+7, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है। ओके, इट मींस दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं हो सकते, ना तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो सकते और ना ही दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हो सकते, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, दोनों पॉजिटिव कब होंगे, when x is greater than 7 or equals to 7, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और x is less than 2 -2, यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स है वो 2 से 7 के बीच की वैल्यू हमें चेक करनी है, और हमें इसमें कुछ नहीं करना है, -2 and 7। ओके, तो -2 पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, इट वोंट वर्क। ओके, -1 पुट करेंगे, so this will becomes 1 and this bracket will becomes 8, so the resultant is 7, this also won't work। अगेन x की वैल्यू पुट करेंगे -2, सॉरी -2 हमने पुट कर लिया था, -1 पुट कर लिया था, हम 0 पुट करेंगे तो इसका ब्रैकेट का आउटपुट 2, इसका 7, डिफरेंस इज 5, इट्स ओके। सो द फर्स्ट वैल्यू इज 0, 1 will also do, 2 will also do, 3 will also work because 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5, और ये हो जाएगा 4, डिफरेंस इज -1, इट विल वर्क। 4 will also do, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, डिफरेंस इज 3। 5 पर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट से आउटपुट मिलेगा 7, फर्स्ट से आउटपुट मिलेगा 2, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, इट विल ऑल्सो डू, बट यह 6 पर नहीं आएगा क्योंकि 6 रखने पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 - 8 becomes 7 क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो टोटल वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पर ये वर्क करेगा, एंड दैट्स ऑल डन। हमें कोई भी इनइक्वालिटी या मॉड की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगानी, बस बेसिक ऑब्जर्वेशन चाहिए, इन दो ब्रैकेट का डिफरेंस 9 है और हमें डिफरेंस चाहिए 6 से कम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On selling a cell phone, shopkeeper made a profit of 25% on selling price. This is very important point. After allowing a discount equals to his actual profit percentage, find his profit percentage if he allows a discount of 20%. Okay, let's begin. इसमें हमें क्या करना है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 25% और वो भी सेलिंग प्राइस पे। तो मुझे सेलिंग प्राइस, लेट्स अज्यूम द सेलिंग प्राइस इज 4 और द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, तो 4 चलेगा, आप 100 भी ले सकते हैं, ठीक है, बट x मत लीजिएगा क्योंकि x से कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये हो गया सेल्स प्राइस। प्रॉफिट कितना है हमको पता है, इस सेल्स प्राइस का 1/4 मींस 25%, तो प्रॉफिट शुड बी 1, तो यहां से सीपी कितनी हो जाएगी, 3। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, एमपी। अब उसने बोला डिस्काउंट कितना परसेंट है, उतना ही परसेंट है जितना परसेंट इसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1/3 और 33.33%। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट 1/3 है तो डिस्काउंट भी 1/3 होगा, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचेगी उसे हम सेल्स प्राइस बोलते हैं और वो है 2/3। इट मींस आपकी एमपी हो जाएगी 6 और डिस्काउंट हो जाएगा 2, क्योंकि देखो डिस्काउंट इज 2/3 ऑफ एमपी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कलेक्ट होगा। 2/6 मींस 1/3। सेम जो आपका प्रॉफिट और सीपी में रिलेशन है वही डिस्काउंट और एमपी में रिलेशन हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कॉस्ट प्राइस 3 है, मार्क प्राइस 6 है, 20% डिस्काउंट देगा मींस 1.2, सेल्स प्राइस हो जाएगी 4.8। नाउ
प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.8 आउट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इट बिकम्स 60%. Okay, you can see this video multiple times to understand the logic, and these are very easy questions. Let's move on to next question. Okay, a typical question जिसको देखकर बच्चों को बहुत डर लगता है. Tank of 220 liter has n taps numbered from 1 to n. At the start of nth minute, n belongs to 1 to n. The tap numbered n, which fills the tank at the rate of n liters per minute, means first minute में tap 1 start होगा, वो भरेगा 1 liter per minute. Second minute पर tap 2 start होगा, वो भरेगा 2 लीटर. तो सेकंड मिनट पर जो पानी भराएगा वो भराएगा 1 + 2, क्योंकि 1 वाला तो चालू ही है. थर्ड मिनट पर टैप 3 शुरू होगा और वो भरेगा 3 लीटर पर मिनट. तो थर्ड मिनट में पानी कितना भरेगा 1 + 2 + 3 एंड n मिनट तक चलेगा. ठीक है, तो nth मिनट में पानी कितना भराएगा. ओके, और ऐसा करने से टैंक आपका टोटल फिल हो जाएगा और इनका सब मिलाकर कितना हो जाना चाहिए 220. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. तो हम देखो ये हमारी एक मिक्स सीरीज बन रही है, क्योंकि ना तो ये एपी है और ना ही ये जीपी है. इस सीरीज का हमें सबसे पहले टीएन देखना पड़ेगा, मतलब nth टर्म. तो पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1 + 2, तीसरा टर्म है 1 + 2 + डैश 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 n. ये टीएन. और हमें पता है ये नेचुरल नंबर्स का सम हो जाता है n + 1/2, और यू कैन से 1/2 n² + n. ठीक है, ये इसका nth टर्म है. अब हमें लेकिन सम चाहिए, तो Sn. तो हमें अब इनका सम चाहिए पड़ेगा. n² टर्म का सम कितना होता है. n² का सम होता है n + 1 2n + 1/6, और n का सम होता है n + 1/2. ये जो सम आना चाहिए ये 220 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे बस के ऑलमोस्ट बाहर है, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी. तो इस केस में अब आपको यहाँ पर वैल्यू हिट एंड ट्रायल से पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आप कोई वैल्यू पुट करके देखिए जिससे आपको लगता है कि आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 220 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है. लेट्स पुट अ वैल्यू n की वैल्यू हम 10 पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन थोड़ी शायद इजी हो जाएगी. इट बिकम्स 10 × 11 × 21/6 + 10 × 11/2 1/2. देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. /6 का सॉरी 2 गलत लिख दिया मैंने. 385 + 55 440/2 220 ही आ गया आंसर. हालांकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया, जरूर नहीं है, हालांकि मुझे आंसर बता भी रहा. बट आप ऐसे ही कोई वैल्यू रखकर देख सकते हैं. इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन है, आपको वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा. ठीक है, कुछ रफ आइडिया आपने देख लिया कि 200-300 आएगा तो 10-12 टर्म में आंसर आ जाएगा. ओके, कुछ और हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम n की वैल्यू ऑप्शन में से भी पुट करके देख सकते हैं, बट हम यहीं तक इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो इस जो वीडियो था इसका नाम है टॉप 50 क्वेश्चंस व्हिच यू शुड सॉल्व बिफोर कैट. यहाँ तक पूरे 50 नहीं हुए हैं, 33 हुए हैं. बाकी 17 क्वेश्चन के लिए मैं पार्ट इस वीडियो का सेकंड पार्ट बाय पॉसिबली कल तक डाल दूंगा. आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू कैन सेंड मी बिफोर टुमारो सो दैट आई कैन ऐड दोस स्पेसिफिक क्वेश्चंस. अगर वो इम्पोर्टेंट या अच्छे हुए तो आई विल ऐड दोस. सो थैंक यू वेरी मच. If you like this video, please share and comment and like. Thank you very much.